something right. I'm sure my parents, Bhatt Saab, the fact I'm standing here, it shows about a new beginning that we are stepping on with, and Srijit is there. So I would like to say that couldn't be better than Begum Jaan, because what Begum Jaan does is, like you rightly said, it's not about women empowerment, it's about women. And this film will just show that women are a far, far more superior gender. And we will see that from the trailer itself. And I'd like to introduce our partners, Play Entertainment, Mr. Milind Apke, to come on stage. Mr. Milind Apke, the CEO for Play Entertainment, thank you so much for being here. Good evening, good afternoon rather. First and foremost, the right word, partner. Today, whether it is business, whether it is politics, whether it's personal life, always, partner plays a very important role. And for us, we always felt that cinema is a confluence of art and commerce. And here is a partner. There is a creative genius of Bhatt Saab and the great business acumen of Mukesh ji. We couldn't have a better partner than this. Personally, my relationship with Mukesh ji goes almost a decade back. And we at Play Entertainment, with this kind of philosophy, always felt that we needed to have a good partner. And that's what we have been doing. Last year, we had Gangajal, partnering with Prakash ji. And this year, Begum Jaan. I will not be holding too much between you guys and the trailer, but watch and experience. As a producer, I don't need to be saying more. I will be holding my restraint, but you're going to experience something which you have never done before. Thank you. Wow, lovely. Thank you so much. On stage, please. अभी हम लाइव फेसबुक पे थे तो एक शेर मुझे अचानक याद आ गया जो एक लखनऊ में एक शायर खुशबीर सिंह साध ने मुझे सुनाया था। वो कहा था, ये आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। शेर है कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं हम, जो और करते हैं वो हम नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए फॉर दैट, माय गॉड। तो जैसे विशेष कह रहे थे कि ये 30 साल का सफर जहां बनते गए, मिटते गए, फिर उठाया, फिर समेटा, फिर चल दिए, ये कहीं पर हमारी जुर्रत, हमारी फितरत की वजह से हम यहाँ पर है। और आज एक नई सुबह है, एक नई ऊर्जा है। मेरे साथ हिंदुस्तान का शायद सबसे सिग्निफिकेंट फिल्म मेकर खड़ा है। शायद मैंने थोड़ी सी ह्यूमिलिटी उस पे पोतने के लिए कहा। मेरा यकीन है कि इससे बेहतरीन फिल्म मेकर आज की तारीख में हमारे लैंडस्केप में नहीं है। इसके पास वो ऊर्जा है, वो समझ है, वो दृष्टि है और वो सबवर्सिव इकोनॉमिक समझ है, जिसकी वजह से ये ऐसा एक मिरेकुलस प्रोडक्ट बना के लाए हैं जिसका नाम है बेगम जान। और वो संभव इसलिए हुआ क्योंकि विद्या जी और ये 10 खूबसूरत हीरोइंस हमारे साथ थी जो जिन्होंने हमारे को सब कुछ दे दिया। और बाद में जो मेल्स हमारी सपोर्टिंग स्टार कास्ट थी, उन्होंने भी पूरी तरह सरेंडर करके एक ऐसा सिनेमा हमें परोसा है जो शायद बरसों हमें, शायद क्यों बोल रहा हूँ मैं, यकीनन सालों आपके जहन में उसकी इमेजेस चलती रहेंगी। तो अब मेरी इल्तिजा है कि श्रीजीत बहुत कम बोले क्योंकि मैंने सब कुछ बोल दिया, और बात जल्द से जल्द हम वो इमेजेस दिखाएं। So just a couple of things. Thank you to Bhatt Saab, Mukesh ji, Vishesh, Milind ji for giving me this platform and making me a part of Vishesh Films' resurrection renaissance through Begum Jaan. The second thing I want to tell you is I want to speak to you in 5.1 and in CinemaScope. Can we have the trailer, please? Great, thank you. So I would request all of you to not step याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल।
सॉरी मैं भटक गई बेगम जान मुझ में घुस गई थी मैं आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज बना के रखा था आपने, क्योंकि- you were just waiting for this day. या एवरीवन's been asking me कि ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊं और फिर दिखाऊं. हाँ, क्योंकि इसमें इतना धमाका है हाँ कि 1 महीने से ज्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज करते हैं, सबको दिखाते हैं, फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना, अप्रैल 14 को रिलीज. हाय, क्या बात है. अच्छा, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल अग्री. आपने इस फिल्म में जरूर बताया है कि आप रानी हैं, इस महल की रानी हैं आप, लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू, कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी, रानी बन गई थी? या हमारी दोस्त भी थी और हमारी रानी भी थी, और एक्चुअली शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स, सो या वी लव हर. बट शुरुआत में ऐसा नहीं था, was nobody intimidated by her कि विद्या बालन के साथ काम करेंगे, डर लग रहा I है? have to tell you, sorry, I won't let you answer. When I entered the room for the first time, और सब जिस तरह से चिल्लाए, मैं intimidate हो गई थी. मैंने कहा कि oh my God, you know, and I saw them in action. So many talented actors in one room. Yeah. It was just incredible. It was unbelievable. So मैं intimidate हो गई थी. Oh my God, that's huge. Sorry, you were saying something. इला जी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूंगी. बताइए. So, बहुत पुरानी बात है, ऐसे करना चाहूंगी मैं कि शुरुआत की थी आपने मंडी के साथ में, मंडी फिल्म के साथ में, और वहां से लेकर के यहाँ तक, नॉट द सेम सब्जेक्ट बट देन स्टिल ऑलमोस्ट अराउंड द सेम दिस थिंग. आप कैरेक्टर, ऐसा नहीं लगता आपको सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ. महेश जी दूसरी फिल्म नहीं देंगे. पर मंडी से लेकर के और बेगम जान तक की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है. फर्क मंडी और बेगम जान में ये है कि एक तो ऑडियंस बदलती है. ऑडियंस को ये देखना पड़ेगा कि औरतें कहाँ कहाँ से क्या क्या दिल में छुपा करके क्यों उस मुकाम तक जाती हैं. दूसरी बात ये कि जो श्रीजीत की फिल्म है और मंडी है, उस वक्त मैं धंधा करती थी, इस वक्त हम लोग सीनियर होके बैठे हैं. अब धंधा करवाते हैं, अब धंधा करवाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें बंटवारे को लेकर के वो जो लाइन है कि किस तरीके से एक लाइन घर को बांटती चली जाती है, वो इसकी एक सारी औरतों में आपने कहा कि हाथ में हुक्का और आंखों में शैतानी, पर कोमल से दिखने वाली ये है मर्दानी. जो मर्दान की औरत की इस फिल्म में आई है, हमारी में सिर्फ नजाकत थी, कोटे थे, झनकार थे. ये कुछ और है, ये कुछ और है. एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद श्रीजीत एंड महेश जी. और दूसरी बात ये, एक गायिका के हिसाब से मुझे दुख तो बहुत लगता है कि ऐसा रोल मुझे मिला है जिसमें कहा कि अच्छा गाना सुनो, गाना मत. तो इतना बढ़िया म्यूजिक है, इतना बढ़िया म्यूजिक है. मैंने सोचा कहीं तो मैं गुनगुनाऊं, वो आपने मुझे मौका नहीं दिया. गुनगुना दो. नहीं गुनगुना सकती. जो आशा जी ने गाया, नहीं, अन्नू दबा देगा अगर मैं दूसरों का अच्छा गाना मैं गाने लगूंगी. ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो आप लोग जरूर आए, 1 महीना गिनिए कि बेगम जान क्या क्या लेकर आ रही हैं. शुक्रिया. क्या बात है, वाह, ब्यूटीफुल. एक और बार मैं आई वुड लाइक टू आस्क द गर्ल्स, मे बी फ्लोरा